Welcome to Biokey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोकी फॉर नीट, जहां पर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2025 बायोलॉजी पेपर की। वी आर ब्रिंगिंग यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरेटेड क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025 बायोलॉजी पेपर्स। हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, जिसको देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and like the video. Stay with us till the end. Question number 1. Which type of root modification is found in carrot? Napiform, fusiform, conical, tuberous. Which type of root modification is found in carrot? So, answer is napiform. जो napiform root modification है, इसमें upper part जो होता है root का वो swollen होता है ना? And it tapers abruptly at the lower end. ये कहां देखने को मिलेगा? कैरेट में और टर्निप पे। यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है। It is a modification of the taproot system for storage. Next, the stem modification seen in ginger is tuber, rhizome, corm, bulb. The stem modification seen in ginger is, answer is rhizome. जिंजर जो होता है ये एक अंडरग्राउंड राइजोम है ना? It is a horizontal stem with nodes, internodes and scale leaves. इसके पास बड्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, जो कि फूड को स्टोर करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ स्टेम मॉडिफिकेशन, नॉट अ रूट। Pneumatophores are found in maize, rhizophora, mustard, wheat. Pneumatophores are found in maize, rhizophora, mustard, wheat. आंसर इज rhizophora. जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, दे आर वर्टिकल रूट्स, दे आर vertical roots and they grow upwards, है ना? जो वाटर लॉक्ड सॉइल्स होती हैं मैंग्रोव्स में, वहां पे क्या होता है कि these pneumatophores grow upwards like rhizophora. ये क्या करती हैं? ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं थ्रू टेंटिकल्स। अगर ऑक्सीजन कंडीशंस हैं, लो ऑक्सीजन कंडीशंस हैं, तो वहां पे ये क्या करेंगी? दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज थ्रू लेंटिकल्स। नेक्स्ट, the leaf of onion is modified for climbing, support, photosynthesis, storage. The leaf of onion is modified for answer is storage. ओनियन में जो है वो फ्लेशी पार्ट्स होते हैं। ये फ्लेशी पार्ट्स कहां होते हैं? दे आर मॉडिफाइड लीव्स. These modified leaves store water and nutrients. All right. जो बल्ब होता है ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट, which of these is an example of pinnately compound leaf? Cotton, silk cotton, neem, cassia. ये पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है? यहां पे क्या होता है
कि लीफलेट्स जो है वो दोनों साइड में अरेंज्ड होती हैं कॉमन एक्सिस पे। एग्जांपल इज नीम। नेक्स्ट, in racemose inflorescence, the flowers A are born acropetally, B are born basipetally, C are born randomly, D bloom simultaneously. तो जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, यहाँ पे जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है ना, दे आर एट द बेस, और जो यंगर होते हैं वो एपेक्स के ऊपर ऊपर की तरफ डेवलप होते हैं। दिस इज नोन एज acropetally succession. It is known as acropetally succession. All right. Next, the type of estivation found in cotton is valvate, twisted, imbricate, waxillary. Answer is twisted. देखिए, in twisted estivation, one margin of each petal overlaps the next one, है ना? And the other margin is overlapped. ये कहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को कॉटन में देखने को मिलता है और लेडीज फिंगर में देखने को मिलता है। Twisted estivation. All right. Next, which floral whorl is absent in unisexual flowers? Which floral whorl is absent in unisexual flowers? Sepals, petals, stamens, or carpels? D. Bracts. Which floral whorl is absent in unisexual flower? So in unisexual flower, only one reproductive whorl is present. या तो stamen होगा या फिर कार्पल्स होंगी। स्टेमन क्या होता है? ये मेल होता है। कार्पल्स क्या है? ये फीमेल है। इसलिए जो दूसरा वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, मेकिंग द फ्लावर यूनिसेक्सुअल एंड इनकम्प्लीट। आंसर इज स्टेमन्स और कार्पल्स, सी। नेक्स्ट, the edible part of apple is formed from ovary, thalamus, pericarp, petiole. जो एप्पल है उसका एडिबल पार्ट किस चीज से बनता है? आंसर इज थैलमस। ये एप्पल में जो एडिबल पार्ट होता है ये ओवरी नहीं होता, ये थैलमस होता है, जिसकी वजह से ये फॉल्स फ्रूट बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडो कार्प, है ना? जो ट्रू ओवरी होती है, इट रिमेन्स एम्बेडेड विद इन द फ्रूट, और एडिबल पोर्शन जो होता है वो थैलमस बनाता है। नेक्स्ट, which of the following shows waxillary estivation? सोलिनेसी, फेबेसी, लिलिएसी या ब्रेसिकेसी? वैक्सिलरी एस्टिवेशन किसमें दिखता है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है क्या? इट इज अ floral arrangement and it happens in फेबिकेसी। यहाँ पे क्या होता है? जो लार्जेस्ट पेटल होता है वो दो जो लेटरल विंग्स होती हैं उसको ओवरलैप करता है ना? नेक्स्ट, फ्लोरल फार्मूला ऑफ फेबिकेसी कंटेन्स। फेबिकेसी में फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? सो आंसर इज ए। देखिए, जो ये सिंबल है ये क्या दिखाता है? ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री दिखाता है। ऑलराइट, उसके बाद जो K5 है ये दिखाता है दिस K5, इट शोज सेपल्स, वो सेपल्स जो यूनाइटेड हैं।
उसके बाद C1 plus 2 plus 2, this portion, sorry, this portion, C1 plus 2 plus 2, it represents corolla with 5 petals, corolla plus 5 petals, जिसमें से एक जो है वो स्टैंडर्ड पेटल होगा, 2 लेटरल विंग्स होंगी और 2 कील पेटल्स होंगे। एक क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा, 2 लेटरल विंग्स होंगी और 2 कील होंगे। ऑलराइट, फिर हम लोग आते हैं A9 plus 1। A9 plus 1 क्या करता है? इट रिफर्स टू द एंड्रोइशियम। जो एंड्रोइशियम होता है इसको ये दिखाता है विथ 10 स्टेमेंस। एंड्रोशियम जिसके पास 10 स्टेमेंस होंगे, 9 उसमें से एक ग्रुप की तरफ फ्यूज रहेंगे। दिस 9 shows to the group which is fused together and 1 is free, A9 plus 1। ऑलराइट, एंड G1 क्या है? ये दिखाता है कि गायनोसियम विथ 1 कॉर्पल। ये दिखाता है गायनोसियम विथ 1 कॉर्पल। नेक्स्ट, phylloclade is a modification of leaf, root, stem, flower। आंसर इज स्टेम। जो phylloclade होता है ये ग्रीन होता है, फ्लैटेंड होता है या कभी-कभी सिलिंड्रिकल भी होता है, बट इट इज अ स्टेम। और इसका काम क्या है? इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। Phylloclade is a green flattened or cylindrical stem modified for specially performing photosynthesis। और ये मिलता कहाँ है? ज़ीरोफाइट्स में। इट इज कॉमन इन ज़ीरोफाइट्स। एग्जाम्पल इज Opuntia। Next, which of these has a composite fruit? Apple, jackfruit, mango, tomato। कंपोजिट फ्रूट क्या है? कंपोजिट फ्रूट मीन्स मल्टीपल फ्रूट्स। सो आंसर इज जैक फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे ईच एवरी जो होता है, हर एवरी जो होती है एक फ्लावर की, वो कंट्रीब्यूट करती है एक फाइनल फ्रूट बनाने के लिए। Perichial placentation is found in, parietal placentation is found in mustard, tomato, China rose या pea। So it is found in mustard। यहाँ पे क्या होता है? ovules are attached to the inner wall of the ovary and develop into unilocular chamber। ठीक है, so parietal placentation is an example of mustard। Next, which of the following shows zygomorphic flower symmetry? Mustard, datura, pea, sunflower। आंसर इज पी। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है इज वन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। एक वर्टिकल प्लेन में 2 इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, ये हम लोग को फेवेसी फैमिली में देखने को मिलता है, जिसका एग्जांपल है पी। कहां देखने को मिलता है? फेवेसी फैमिली। नेक्स्ट, corm is a swollen leaf, fleshy taproot, fleshy underground stem, modified flower। देखिए,
कोलोकेशिया में या फिर ग्लैडियोलस में हम लोग को ये कौन देखने को मिलता है? इट इज अ शॉर्ट वर्टिकल स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम विथ बड्स। इसमें इंटरनोड्स होते हैं, बड्स होते हैं, नोड्स होते हैं। ठीक है, इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम which is short, vertical, and swollen, and it is shown in Colocasia and Gladiolus. Answer is fleshy underground stem. The inflorescence in sunflower is umbel, head or capitulum, raceme, spike. Answer is head or capitulum. यहाँ पे क्या होता है, सनफ्लावर में जो फ्लोरेट्स होते हैं ये दे आर अरेंज्ड ऑन अ फ्लैट डिस्क लाइक रिसेप्टिकल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिचुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इट्स हाईली कॉम्पैक्ट एंड कंपोजिट। नेक्स्ट, tuberous roots differ from stem tubers because they have nodes and internodes, they store food, they lack adventitious buds, or they are not edible. So answer is they lack adventitious buds. जो tuberous roots होती हैं जैसे कि sweet potato, they are modified roots, they do not have nodes or internodes or buds. लेकिन जैसे जो stem tubers होते हैं लाइक पोटैटो, उनके पास क्या है, they cannot propagate via eyes, that's why they lack adventitious buds. Which plant has pinnate venation? People, maize, banana, grass. पिनेट वेनेशन क्या होता है, इसका सिंगल इसमें मिडरिब होता है जिसमें स्मॉलर लेटरल वेन्स होती हैं। सिंगल मिडरिब है और स्मॉलर लेटरल वेन्स हैं। ठीक है, आंसर इज पीपल। इन पी टेंड्रल्स आर मॉडिफाइड, स्टेम्स, रूट्स, लीव्स या इनफ्लोरेसेंसेस। So tendrils are modified leaves. जो टर्मिनल लीफलेट्स होती हैं यही मॉडिफाई होकर के टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं फॉर क्लाइंबिंग। इट्स अ लीफ मॉडिफिकेशन, इट्स नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन बट अ लीफ मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट, द एंड्रोइशियम इज डिस्क्राइब्ड एज diadelphous when stamens are free, stamens are in single bundle, stamens are in two bundles, या stamens are fused with petals. Answer is stamens are in two bundles. डायडेल्फस कंडीशन में क्या होता है, स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन टू बंडल्स, जैसे कि हम लोग को फैबेसी में देखने को मिलता है। टिपिकली क्या होता है, 9 फ्यूज्ड और 1 फ्री होता है। नेक्स्ट, व्हिच फैमिली हैज एपिगाइनस फ्लावर्स विथ इंफीरियर ओवरी, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, कुकुरबिटेसी। आंसर इज डी, कुकुरबिटेसी। क्यों? जो एपिगाइनस फ्लावर्स होते हैं उनके पास इंफीरियर ओवरी होती है, फ्लोरल पार्ट्स अपीयर टू राइज फ्रॉम अबव द ओवरी। सो इस फैमिली में कुकुरबिटेसी में क्या होता है, फ्लोरल फ्लोरल जो फ्लोरल सॉरी फ्लोरल स्ट्रक्चर इज प्रोमिनेंट। नेक्स्ट,
Which one has a fibrous root system? Mustard, sunflower, maize, banyan. फाइब्रस रूट सिस्टम। तो जो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, ये टिपिकली कहां देखने को मिलता है? हम लोग को मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। एंड मेज इज अ मोनोकॉट। जो यहाँ पे क्या होता है, रूट्स जो होती हैं वो स्टेम के बेस से ही निकलना शुरू करती हैं, राइट? दीज रूट्स आर थिन, थ्रेड लाइक, एंड दे आर यूनिफॉर्म। When leaflets are attached to a common point like fingers on a palm, it is called palmately compound leaf, pinnately compound leaf, simple leaf या whorled arrangement. When leaflets are attached to a common point like fingers on a palm, it is known as palmately compound leaf. यहाँ पे क्या होता है, जितने लीफलेट्स होते हैं सब एक कॉमन पॉइंट से अराइज होते हैं। इट इज सीन इन कॉटन या फिर सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है, और कैस्टर में देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो सीन इन कैस्टर। नेक्स्ट, a drupe is a type of dry fruit, fleshy fruit, multiple fruit या aggregate fruit. A drupe is a type of, answer, fleshy fruit. ठीक है, इसमें एपिकार्प जो होता है वो थिन होता है, मीजोकार्प जूसी होता है, हार्ड होता है, और इंडोकार्प जो होता है वो स्टोनी होता है, लाइक इन मैंगो या कोकोनट। ठीक है ना? ये यूजुअली जो होता है डेवलप करता है मोनोकार्पिलरी से, जो सुपीरियर ओवरी होती है। नेक्स्ट, which meristem helps in primary growth of the plant? Lateral meristem, intercalary meristem, apical meristem, cambium. Answer is apical meristem. It is located at the root and shoot tips, जिससे प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक इंक्रीज इन लेंथ जैसे है, वो प्राइमरी ग्रोथ का पार्ट होता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेम, राइट? नेक्स्ट, जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स। जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम होता है उसमें क्या नहीं होता? ट्रैकिट्स, वेसल्स, फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जिम्नोस्पर्म में जो होता है, जो जाइलम होते हैं उसमें वेसल्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो वाटर कंडक्शन होता है ना, वो ट्रैकिट्स के द्वारा होता है, ट्रैकिट्स के थ्रू होता है। एंड ट्रैकिट्स आर लेस एफिशिएंट देन वेसल्स। एक इसका एक्सेप्शन है एटम। दिस इज अ gymnosperm that has vessels in their xylem. This is exception. Next, which is a simple permanent tissue? Phloem, collenchyma, xylem, cambium. Collenchyma क्या होता है? It is a simple permanent living tissue. Answer is collenchyma. इसका क्या होता है? Unevenly thickened cell wall होता है, unevenly. Alright? इसका काम क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है टू ग्रोइंग प्लांट्स। नेक्स्ट, companion cells are found in association with tracheids, sieve tubes, vessels, xylem parenchyma. Companion cells are found in association with, answer is sieve tubes. जो companion cell होती हैं, they are narrow living cells found next to sieve tube elements in phloem, right?
फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा कंपेनियन सेल्स। Which of the following has unevenly thickened cell walls? Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma या phloem? Which of the following has unevenly thickened cell wall? अभी तो मैंने जस्ट बताया। Answer is collenchyma. Answer is collenchyma. ये कहाँ रहती हैं? They are found next to sieve tube elements in the phloem. The vascular bundle in dicot stem are closed and scattered, closed and radial, open and conjoint, open and radial. Vascular bundles in dicot stems are, answer is open and conjoint. जो डाइकोट स्टेम्स होते हैं यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होती हैं वो कंजॉइंट होती हैं, जाइलम और फ्लोएम एक साथ होती है एंड दे आर आल्सो ओपन। हाँ, उनके बीच में कैम्बियम होता है। नेक्स्ट, बुलिफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन द, बुलिफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन द डाइकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, मोनोकॉट रूट। So bulliform cells are large, vacuolated एपिडर्मल सेल्स, और ये हम लोग को देखने को मिलती हैं मोनोकॉट लीव्स में। ठीक है, जब ड्रॉट वाली कंडीशन आती है तो वाटर लॉस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, these bulliform cells help in folding of the leaves and they are found in monocot leaf. Which plant tissue lacks protoplasm at maturity? Parenchyma, collenchyma, xylem vessels, phloem parenchyma. Which plant tissue lacks protoplasm at maturity? तो जो जाइलम वेसल्स होती है ना, दे आर डेड एट द मैच्योरिटी। वो एक लॉन्ग ट्यूब्स की तरह काम करती है सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो आंसर इज जाइलम वेसल्स। एंडोडर्मिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिन वॉल्स, थिक क्यूटिकल, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, इंटरसेल्युलर स्पेसेस। एंडोडर्मिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आंसर इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये क्या होती हैं? दे आर tuberine rich bands, these are bands, and they are found in radial wall of these endodermal cells. Pericycle in roots gives rise to root hairs, cortex, lateral roots, epidermis. Pericycle in roots gives rise to root hairs, cortex, lateral roots, epidermis. जो पेरिसाइकिल होता है वो रूट का, ये इससे क्या होता है? लेटरल रूट्स राइज होते हैं। ठीक है, इट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएशन, इट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएशन। नेक्स्ट, which cell type provides mechanical support and is dead? Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, phloem. Answer is sclerenchyma. जो sclerenchyma का cells है, they are dead at the maturity with thick lignified walls. इनका काम है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है, दे लाइक हस्क हो गया या सीड कोट्स हो गए, वस्कुलर टिश्यूज हो गए, ये उसमें आते हैं स्केलेरनकाइमा। नेक्स्ट, वस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज, वस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज, in monocot stems
Vascular bundles are scattered. ठीक है, ये ग्राउंड में ये थ्रू आउट स्कैटर्ड होते हैं और टिश्यूज इनके जो होते हैं दे आर क्लोज्ड, they lack cambium. So answer is closed and scattered. Annual rings are formed due to epidermal growth, primary growth, seasonal activity of cambium या movement of water. Annual rings are formed due to, so they are formed because of the seasonal activity of cambium. Annual rings are formed due to seasonal activity of cambium, जो alternating activity होती है. ठीक है, स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में फास्टर ग्रोथ होता है और ऑटम में क्या होता है? स्लो ग्रोथ होता है. नेक्स्ट, which component of xylem is living? Tracheids, vessels, fibers, xylem parenchyma. Which component of xylem is living? Answer is xylem parenchyma. जाइलम के हर कंपोनेंट में सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा है जो कि लिविंग होता है. इसका काम है फूड को स्टोर करना और वाटर का जो रेडियल कंडक्शन होता है उसमें भी ये हेल्प करता है. जाइलम पैरेनकाइमा. Next, the cork cambium produces secondary xylem, phloem, periderm, vascular cambium. The cork cambium produces. Answer is C, periderm. जो कॉर्क कैम्बियम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फेलोजन. ये क्या प्रोड्यूस करता है? कॉर्क, जिसको हम लोग कहते हैं फेलम, है ना? और इसके साथ क्या होता है? फेलोडर्म. फेलोडर्म. तो फेलोजम, फेलम और फेलोडर्म ये तीनों मिलके बना देते हैं पेरिडर्म, जो कि एक सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है. तो जो कॉर्क कैम्बियम होता है जिसमें ये तीन चीजें हैं, फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म, ये तीनों मिलके बना देती हैं पेरिडर्म, जो कि एक सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है. नेक्स्ट, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर केमिकली मेड ऑफ सुबेरिन, पेक्टिन, लिग्निन, क्यूटिन. तो अभी मैंने लास्ट कुछ क्वेश्चन में बताया था, एक क्वेश्चन लास्ट था उसमें मैंने बताया था कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मेड अप ऑफ सुबेरिन. ठीक है, और ये कहां पे मिलती हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, दे आर फाउंड इन एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स. और जो ये सुबेरिन होता है ये वैक्सी कंपाउंड है, वैक्सी है, ऑल्सो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है. नेक्स्ट, secondary xylem and phloem are produced by. Secondary xylem and phloem are produced by interfascicular cambium, cork cambium, vascular cambium या pericycle. Secondary xylem and phloem are produced by. Answer is vascular cambium. So vascular cambium produces secondary xylem जिसको wood कहा जाएगा. Next, the vascular bundle in sunflower stem is. Vascular bundle in sunflower stem is. Answer, it is conjoined, open and dark. है ना? सनफ्लावर जो होता है ये क्या है? इट इज अ डाइकॉट. तो इसका जो वस्कुलर बंडल होता है वो कंजॉइंट होता है. कंजॉइंट मतलब क्या हो गया? जाइलम एंड फ्लोएम बोथ. ओपन का मतलब क्या हो गया? इट हैज कैम्बियम. और एंडार्क का मतलब क्या हो गया? कि प्रोटोजाइलम इसके पास है. सो
The sunflower stem is conjoined, open and indark. Which structure helps in gaseous exchange in stems? Pith, lenticels, cork, collenchyma. कॉर्क कैम्बियम जो होता है उसके अंदर पोर्स बनते हैं. These pores are called lenticels, which help in gaseous exchange in stems. Next, a monocot leaf shows reticulate venation, stomata on upper surface only, bulliform cells, spongy parenchyma only. मोनोकॉट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक है क्या? तो मोनोकॉट के पास जो होता है ये बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं. ये हेल्प करते हैं इसको फोल्डिंग में अगर ड्रॉट कंडीशन है तो. है ना? वाटर स्ट्रेस हो रहा है तो बुलिफॉर्म सेल्स जो कि लीव्स के ऊपर लेयर में रहती हैं, दे हेल्प इन फोल्डिंग ऑफ द लीव्स. पेरिडर्म इंक्लूड्स इनमें से पेरिडर्म के पास क्या है? आंसर इज फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये तीनों मिलके क्या करती है, एक सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर को बनाती हैं जिसको कहते हैं पेरिडर्म. ठीक है? फेलम मतलब कॉर्क, फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम और फेलोडर्म मतलब क्या होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ये तीनों मिलके पेरिडर्म को बनाती हैं. है ना? नेक्स्ट, द टर्म बार्क इंक्लूड्स only cork, tissues outside vascular cambium, only secondary phloem, pith and phloem. बार्क क्या होता है? इट इज टिश्यूज आउटसाइड वस्कुलर कैम्बियम. ऑल द टिश्यूज जो कि वस्कुलर कैम्बियम के बाहर हैं उसको हम लोग कहेंगे बार्क. राइट? नेक्स्ट, which tissue helps in plant flexibility? Sclerenchyma, collenchyma, xylem, cork. इसमें से जो है वो कॉलेनकाइमा होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है. जो यंग स्टेम्स होती हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कॉलेनकाइमा करता है. जो लीफ की स्टॉक्स हैं, है ना, बेंडिंग ना हो उसके लिए, रेजिस्ट करने के लिए इट हेल्प्स. गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द रोल ऑफ. जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है वो किसका रोल प्रूव करता है? फ्लोएम इन फूड ट्रांसपोर्ट, जाइलम इन फूड ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम इन वाटर कंडक्शन, कैम्बियम इन फोटोसिंथेसिस. तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि अगर एक रिंग को हम लोग हटा देते हैं तो शुगर का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है. जो लोअर पार्ट था प्लांट का उसमें शुगर का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है जिससे स्वेलिंग हो जाती है कट के ऊपर. सो इट प्रूव द रोल ऑफ फ्लोएम इन फूड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट, इन विच पार्ट इज प्रोटोजाइलम एंडार्क? डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, स्टेम, लीफ. प्रोटोजाइलम मतलब क्या हो गया? जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं. सो आंसर इज स्टेम. स्टेम में क्या होता है? प्रोटोजाइलम जो होता है इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द आउटसाइड, जिसको हम लोग कहते हैं एंडार्क अरेंजमेंट. ऑलराइट, so thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you very much.